वेलकम टू माय चैनल। अगर मैं लास्ट वीक निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी हमारा जो फ्राइडे को ओपन हुआ था 2 सितंबर को 17,629 पे मार्केट ने फिर लो बनाया, फिर एक हाई बनाया, फिर फाइनली मार्केट जो वीकली क्लोज हुआ है 17,829। मार्केट ने 200 पॉइंट निफ्टी ऊपर गया है। फाइनली मार्केट अभी 18,000 पहुंचने वाला, जो कि एक बहुत बड़ा मार्केट के रेजिस्टेंस है। अगर वो ब्रेकआउट करता है तो मार्केट हम 18,200 के आसपास देखेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या होने वाला है उसके रिगार्डिंग हम कुछ पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं। की फैक्टर्स दैट विल कीप ट्रेडर बिजी नेक्स्ट वीक। फर्स्ट पॉइंट हमारा इन्फ्लेशन की बात करते हैं हम। तो इन्फ्लेशन फिलहाल अगर लास्ट 5 मंथ की हम बात करें तो 6.71% था जुलाई में, और इस मंथ अगस्त में हमारा एक्सपेक्टेशन इकोनॉमिक्स का कहना है कि इस बार 6.9% से ज़्यादा आने का उम्मीद है। कल हमारा इंडिया में 5:30 PM इवनिंग में डिक्लेयर होगा इन्फ्लेशन पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट, inflation likely to rise in August as an increase in food prices was partially cancelled out by lower prices of other items in the CPI basket. The key data point to watch out for the next week would be consumer price index inflation number for August on Monday, especially ahead of monetary policy meeting scheduled to be held towards the end of this month. Experts largely expect numbers around previous month's level, and if that comes true, then the central bank may adopt a calibrated approach towards policy tightening. In July, CPI inflation was 6.71%. सेकेंड फैक्टर है यूएस इन्फ्लेशन, जो कि हमें अपडेट मिलेगा ट्यूसडे को, 13 तारीख को हमें अपडेट मिलेगा। तो आइए हम जानते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट डाटा पॉइंट दैट ग्लोबल मार्केट विल कीप ऑन आई ऑन वुड बी यूएस इन्फ्लेशन नंबर ऑन ट्यूसडे, especially ahead of a Federal Reserve policy meeting on September 20. The data point will decide how the Federal Reserve will act on further rate hikes, as per the recent speech by Fed Chair Jerome Powell, which was largely hawkish. There could be another 75 basis point hike in interest rates in the upcoming policy meeting, and the Federal Reserve is expected to continue policy tightening to bring the inflation around its 2% target, experts said. The US inflation is July dropped to 8.5% from more than 40 years high of 9.1% recorded in the previous month. तो गाइस, हमारा थर्ड जो की फैक्टर है वो है ग्लोबल डाटा पॉइंट। जो ग्लोबल डाटा पॉइंट है, जैसे यूएस का अपडेट आ रहा है मंगलवार को, यूरो एरिया का अपडेट आएगा, जापान का अपडेट आएगा, चाइना का भी हमें अपडेट मिलेगा इस वीक में। अगर चौथे फैक्टर की बात करें, ऑयल प्राइसेस। Oil prices falling below $90 a barrel during the last week due to fears of weakening demand amid policy tightening and COVID curbs in China caused a rally in equity market. But later on, Brent crude futures settled the week at $92.42 barrel as supply threats supported prices. If the prices stabilize below $100 a barrel and are correct further in coming week, that could support equity market. Experts said generally any fall in oil prices is always beneficial for oil importing countries like India. जब भी बैरल का दाम हमारा कम होगा, डेफिनेटली इंडिया के लिए बेनिफिशियल तो रहेगा, क्योंकि इंडिया हमारा क्या है, एक इंपोर्ट करता है अपना अदर कंट्रीज से ऑयल। सेक्टर की बात करें, इंडियन रुपीज़, द करेक्शन इन ऑयल रेट एंड फर्दर बाइंग बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हेल्प द इंडियन रुपी अप्रिशिएट against the US dollar from its recent record low, but experts feel that could be temporary and currency could weaken to 81 to 82 level in coming weeks. The rupee settled at 79.67 against the US dollar against 79.72 a dollar week on week, but it is strengthened by 49 paise from weekly low. FI have been biased, and positive momentum in the capital market, especially in the financial sector, provided strong support to the rupee. The overall hang-off recently US Fed rate hikes and Reserve Bank of India rates hike can result in continued rupee weakness. तो सिक्स फैक्टर की बात करें तो consistent foreign inflows continue by FIS for another month also lifted market sentiment, and if the flow continue, then the rally may continue in the benchmark indices and broader market, experts said. जैसे कि लास्ट वीक भी देखे हम लोग, इस मंथ में देखा एफआई का बाइंग काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से हमारा मार्केट क्या अभी अप ट्रेंड मोमेंटम में है काफ़ी। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम 18,000 क्रॉस कर लेंगे बहुत जल्दी। एफआई नेट बॉट लिटिल मोर देन 6,100 crore worth of shares during the
passing week. In September so far, they have net bought of 3,837 crores worth of shares on the top of 22,000 crores by buying in the previous month. However, domestic institutional investors have utilized the opportunity to take money off the table by selling 352 crores worth of the share. If the flows from the FI remain supportive, then our market is likely to head towards the new high soon. सो FI की अगर हम बात करें तो अभी फ़िलहाल अभी तक 3,837 करोड़ का बाइंग किया है, और इस मंथ में जो DI की बात करें तो DI क्या कर रहा है, अभी 352 करोड़ रुपीज़ का अभी तक सेलिंग कर चुका है मार्केट में. अगर 7 सेक्टर की बात करें तो है टेक्निकल व्यू. The Nifty 50 has formed a bullish candlestick pattern on weekly chart and formed a small potted bullish candle on the daily scale. The index has been seen a breakout of its small downward sloping resistance trend line at joining us 19 and September 6. Hence, if there is further buying, then that could be take the Nifty 50 beyond the psychological 18,000. सेक्टर F&O अगर की बात करें तो ऑप्शन डाटा जो हमें इंडिकेट कर रहा है निफ्टी 50 का, वो जनरली जो रेंज है 17,500 से 18,000 लेवल इन द इमीडिएट टर्म. वी हैव सीन मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट एट 18,000 स्ट्राइक. सो ओपन इंटरेस्ट हमारा सबसे ज़्यादा हुआ ही कहाँ जनरेट 18,000 पे, विच कुड बी नियर टर्म रेजिस्टेंस फॉलोड बाय 19,000 स्ट्राइक with call lighting at 19,000 strike, then 17,900 to 18,000 strike, while the maximum put option interest was seen at 17,000 strike, followed by 17,500 and 17,700 strike with put writing at 17,000 strike, then 17,900 17,000 strike. So finally guys, मैंने आपको सभी फैक्टर्स के बारे में पहले ही बता दिया है. So आप इन सब पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करिए. की फैक्टर्स मैंने आपको बता दिया है, जैसे हमारा कल के डेट में एक इन्फ्लेशन आएगा, परसों की डेट में हमारा US मार्केट का अपडेशन आएगा, ग्लोबल मार्केट का अपडेट रहेगा, क्रूड में हमारा ऑयल प्राइसेस का अपडेट रहेगा. तो ये सभी फैक्टर्स के बारे में आपको मैंने बता दिया है. इन सभी को अच्छे से ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग करिए. मार्केट में एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है. जब मार्केट में अच्छा ब्रेकअप हो, मोमेंटम हो, तभी आप मार्केट में एंट्री करिए. जब भी आप एंट्री करते हैं मोमेंटम होना चाहिए. अगर मोमेंटम नहीं रहेगा तो क्या होगा, प्रीमियम डिके होगा, तो उससे हम लोग का लॉस होगा. तो लॉसेस हमारा मार्केट में कम होना चाहिए और प्रॉफिट हमारा कंसिस्टेंट होना चाहिए. हमें इस पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. सो गाइस, थैंक यू. अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करना हो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9164473535. साथ में मेरे पास टेलीग्राम चैनल है जो अभी फ़िलहाल सभी के लिए फ्री है. उसमें आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के रिगार्डिंग अपडेट्स मिलता रहेगा. वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं. वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैं शेयर कर दूँगा. थैंक यू.